Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which today we will discuss about the relativity of velocity. अब relativity के अंदर हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। उस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके अगर हम वेलोसिटी की रिलेटिविटी देखें तो वो क्या होगा वो हमको यहां पर डिस्कस करना है। So, relativity of velocity or Einstein's velocity addition rule. Now, relativity of velocity. अब वेलोसिटी की रिलेटिविटी क्या होगी? या अगर कोई दो फ्रेम है उसके अंदर अगर पार्टिकल है और पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपको ऐड करनी है तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा? या एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर जाते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज होगी वो हमको यहां पर लेना है। ऑल्सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन रूल। सो आइंस्टाइन का जो वेलोसिटी एडिशन रूल है वो भी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ हियर वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक फ्रेम हमारा एस है, दूसरा फ्रेम एस डैश है, दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। एस हमारा स्टेशनरी है, ये रेस्ट पर है, जबकि एस डैश एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। सो एस एंड एस डैश बोथ आर inertial frame of reference. Frame S is stationary, whereas S dash is moving with velocity v with respect to S along positive x direction. Now, here we have a point A. The velocity of this point in frame S is u and its component along x, y and z directions are ux, uy and uz. तो यहां पर हमने एक कोई ऑब्जेक्ट इवेंट या कोई पॉइंट माना है ए। इस पॉइंट ए का अगर फ्रेम एस के अंदर वेलोसिटी u है तो इसके x, y एंड z डायरेक्शन में कंपोनेंट हम ux, uy एंड uz कंसिडर करते हैं। एंड इसी पॉइंट ए का फ्रेम एस डैश के अंदर वेलोसिटी के कंपोनेंट ux डैश, uy डैश एंड uz डैश हैं। So ux dash, uy dash and uz dash are the components of velocity of point A in frame h dash along x, y and z directions respectively. Let S and S dash be two inertial frame of reference and S dash is moving with velocity v with respect to S along positive x direction. So S and S dash हमारे कोई दो इनर्शियल फ्रेम हैं। इन फ्रेम में से S डैश हमारा S के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करता है, जो हमने यहां पर इस डायग्राम में दिखाया है कि S डैश हमारा इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करता है। Let a particle is at A moving with velocity u dash in system h dash. So कोई पार्टिकल पॉइंट ए पर है, इस पार्टिकल की फ्रेम एस डैश के अंदर वेलोसिटी u डैश है। सो u डैश इक्वल टू i कैप ux डैश प्लस j कैप uy डैश प्लस k कैप uz डैश। Here ux dash, uy dash and uz dash are the components of u dash along x, y and z directions respectively. So u dash के x, y and z डायरेक्शन में कंपोनेंट हमने ux dash, uy dash and uz dash लिए हैं। तो u dash हमारा ये आ जाएगा। Since the velocity is actually the rate of change of position, so rate of change of position हमारी velocity होती है। ux dash equal to
dx dash by dt dash, uy dash equal to dy dash by dt dash, and uz dash equal to dz dash by dt dash. So ux dash हमारा dx dash by dt dash, uy dash हमारा dy dash by dt dash, and uz dash equal to dz dash by dt dash होगा. Here x dash, y dash, z dash represents the space coordinate of particle A and t dash represents its time coordinate. तो जो पार्टिकल A हमारा है इसके स्पेस कोऑर्डिनेट हम x dash, y dash एंड z dash ले लेते हैं और इसका टाइम कोऑर्डिनेट t dash है. Let the coordinate of A in system S be x, y, z, t and it is moving with velocity u in this system then. So particle A का सिस्टम S के अंदर कोऑर्डिनेट x, y, z एंड t है एंड ये जो पार्टिकल है अगर सिस्टम S के अंदर u वेलोसिटी से मूव करता है देन वेक्टर u इक्वल टू I cap ux plus j cap uy plus k cap uz. Here ux, uy and uz are the components of u along x, y and z directions in frame S. यहां पर ux, uy and uz u के सिस्टम S के अंदर x, y and z डायरेक्शंस में हमने कंपोनेंट्स माने हैं. सो वेक्टर u हमारा इस इक्वेशन से आ जाएगा. It means ux equal to dx by dt, uy equal to dy by dt and uz equal to dz by dt. Since the rate of change of position is velocity, so x coordinate x है, y coordinate y, z coordinate z and time coordinate t है. So ux, uy and uz की वैल्यू आप इन इक्वेशन से निकाल सकते हो. From inverse लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया हुआ है, इसी तरह से इनवर्स लॉरेंस भी हमने डिस्कस किया हुआ है. तो अगर आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो तो क्या होगा? x इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश. ये गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा हमारा v बाई सी था. तो चाहे तो आप गामा की वैल्यू v एंड c के टर्म्स में लिखो या बीटा के फॉर्म में लिखो. सो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से x की वैल्यू हमारे पास में ये है, y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू z डैश एंड टाइम कोऑर्डिनेट t इक्वल टू गामा t डैश प्लस v x डैश बाई सी स्क्वायर. तो ये हमने इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से लिख दिया है. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा. सो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमको ये मिल गया है. नाउ इफ वी डिफरेंशिएट दीज इक्वेशंस, सो अगर आप इन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले हम ये इक्वेशन ले लेते हैं. सो dx इक्वल टू गामा into dx dash plus v dt dash, because v is the velocity of frame s dash and s dash is moving with constant velocity. so अगर v का हम डिफरेंशियल करेंगे तो वो हमारा जीरो होगा, इसलिए v हमारा कांस्टेंट है. सो dx की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी. अब इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल करो. सो dy इक्वल टू dy डैश एंड dz इक्वल टू dz डैश. नाउ अब हम इसका डिफरेंशियल करें तो वो क्या होगा? सो dt इक्वल टू गामा इंटू dt डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश, क्योंकि v भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट एंड गामा भी कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंशियल नहीं होगा, केवल हमारा t डैश x डैश एंड t का डिफरेंशियल होगा. तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल dt इक्वल टू गामा इंटू dt डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश. Now ux equal to dx by dt, uy equal to dy by dt and uz equal to dz by dt. Now dx हमने ये निकाला है, dy ये है
dz ये है और dt हमारा ये है। सो अगर आपको ux की वैल्यू निकालनी है, सो ux इक्वल टू dx बाई dt मीन्स इस इक्वेशन में अगर हम इस इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो हमको ux मिलेगा। सो ux इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू गामा dx डैश प्लस v dt डैश डिवाइडेड बाय गामा dt डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश एंड गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा। सो ux इक्वल टू dx डैश प्लस v dt डैश डिवाइडेड बाय dt डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश। नाउ इस इक्वेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में dt डैश से डिवाइड कर दो, तो ux क्या हो जाएगा dx डैश अपॉन dt डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश बाई dt डैश। सो न्यूमरेटर में हमने dt डैश से एंड डिनोमिनेटर में भी हमने dt डैश से डिवाइड कर दिया है। सो ux की वैल्यू हमको ये मिल गई। नाउ dx डैश बाई dt डैश हमारा ux डैश था, सो ये ux डैश और ये भी ux डैश हो जाएगा। सो ux इक्वल टू ux डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर ux डैश। तो ux की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ui, सो अगर आपको ui की वैल्यू निकालनी है, तो ui इक्वल टू dy बाई dt। सो हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। सो ui इक्वल टू dy बाई dt इज इक्वल टू dy डैश डिवाइडेड बाय गामा dt डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश। तो ui आपको ये मिल गया। अब क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप dt डैश से डिवाइड कर दो। सो यहां पर भी हम dt डैश से डिवाइड करेंगे और यहां पर भी dt डैश से डिवाइड करेंगे। तो ui इज इक्वल टू dy डैश अपॉन dt डैश डिवाइडेड बाय गामा into 1 plus v by c square dx dash by dt dash. Now dx dash by dt dash is ux dash and dy dash upon dt dash is ui dash. So ये हमारा ui dash और ये हमारा ux dash है। So ui क्या हो जाएगा एंड गामा हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है एंड हम चाहें तो v बाई सी को बीटा लिख दें। सो गामा हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो गामा को 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको ui डैश और इसको ux डैश रखोगे। सो ui इज इक्वल टू ui डैश रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर ux डैश। सो यहां पर हमको ux की वैल्यू एंड ui की वैल्यू मिल गई है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ uz। सो जैसे हमने ui निकाला है उसी टाइप से हमारा uz भी आ जाएगा। डिफरेंस केवल ये है कि यहां पर जो y दिख रहा है उसकी जगह आप z रख दो। सो सिंपली ये हमारा z हो जाएगा और ये भी z हो जाएगा। सो uz इक्वल टू uz डैश रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर ux डैश। सो ux uy uz तीनों की वैल्यूज हमको मिल गई है। इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस देन, तो अगर पार्टिकल हमारा ओनली एक्स एक्सिस में मूव करता है तो क्या होगा। सो ux डैश इक्वल टू u डैश, ui dash equal to 0 and uz dash equal to 0. Since particle is moving only along x-axis, so the component of velocity along y and z direction will be 0. So ui dash हमारा 0 हो गया, uz dash भी 0 हो गया। It means जो भी velocity होगी टोटल वो हमारी x डायरेक्शन में होगी। So ux dash equal to u dash। एंड अगर आप ux, uy and uz निकालोगे, so ux equal to u, uy equal to 0 and uz equal to 0. Now ux हमने ux dash plus v divided by 1 plus v by c square ux dash निकाला था।
तो यू एक्स डैश हमारा यू डैश है, तो यहां पर यू डैश और यहां पर भी यू डैश, एंड यू एक्स हमारा यू है, सो यहां पर यू आ जाएगा, ये यू डैश हो जाएगा, ये भी यू डैश हो जाएगा। सो u इक्वल टू यू डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर यू डैश। सो u की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, एंड दिस इज रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। और ये जो रिलेशन हमको मिला है, दिस रिलेशन इज नोन एज रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। इफ v by c square u dash is very much less than 1, so अगर इस वेक्टर की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, इट मींस इसको हम 1 लिख सकते हैं, बिकॉज हियर वी नेग्लेक्ट v u dash by c square इन कंपैरिजन टू 1, तो ये हमारा सिंपली 1 हो जाएगा। इट मींस u इक्वल टू u dash plus v, एंड दिस इज एक्चुअली आवर गैलीलियन रिजल्ट। ये हमारा गैलीलियन रिजल्ट है। तो गैलीलियन के अकॉर्डिंग सिंपली हमने वेलोसिटीज को ऐड कर दिया है। सो u इक्वल टू u डैश प्लस v। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज u डैश इज अप्रोक्सीमेटली c। सो अगर हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी, जिसको हमने u डैश कहा था, वो लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है, मीन्स u डैश इज नियरली इक्वल टू c, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में u डैश को c और यहां पर भी c कर देते हैं। तो u क्या हो जाएगा, so u इक्वल टू c प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर इंटू c। सो इस c से ये c कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस v बाई सी। सो u इक्वल टू c प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी। अब डिनोमिनेटर में हम c एलसीएम ले लेते हैं, तो जैसे ही आप यहां पर c एलसीएम लोगे, तो ये क्या हो जाएगा c प्लस v अपॉन c। सो u इक्वल टू c प्लस v अपॉन c प्लस v अपॉन c। अब c प्लस v से c प्लस v कैंसिल हो जाएगा, और ये जो c है ये हमारा न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। सो u इक्वल टू c। सो इस केस में u की वैल्यू c के इक्वल होगी या ऑलमोस्ट c के इक्वल होगी। Thus, if a particle is moving with velocity of light, then it will move with the same velocity in all inertial frame and will not depend on the relative speed of the frame. अभी हमने प्रूव किया है कि अगर u डैश की वैल्यू c है, तो उस केस में u की वैल्यू भी c होगी। तो ये हमने यहां पर लिखा है कि if a particle is moving with velocity of light, then it will move with the same velocity in all inertial frame and it will not depend on the relative speed of the frame. So अगर कोई एक पार्टिकल किसी एक फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, तो वो पार्टिकल जितने भी इनर्शियल फ्रेम हैं उन सारे इनर्शियल फ्रेम में उसी स्पीड से मूव करेगा, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगा। और इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेम की रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगी। इट मींस द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस सिस्टम। तो यहां पर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट, मींस लाइट की स्पीड हर फ्रेम में हमारी सेम रहती है, ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। Now we will prove that the velocity of light is the maximum range of velocity attainable in nature. So nature में maximum velocity किसी पार्टिकल की आप अचीव कर सकते हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी, उससे ज्यादा वेलोसिटी हम अटेन नहीं कर सकते हैं। Let a particle
be moved with velocity c minus a in a frame s dash and frame move with the velocity c minus b relative to frame s. अब एक फ्रेम हमारा एस डैश है, एक फ्रेम एस है। हम ये मानते हैं कि फ्रेम एस डैश में पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है, मीन c माइनस a है, एंड फ्रेम एस डैश एंड एस की रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो भी हमारी लाइट की वेलोसिटी से कम है एंड इट इज c माइनस b। सो फ्रेम एस डैश एस के रेस्पेक्ट में c माइनस b वेलोसिटी से मूव करता है एंड पार्टिकल जो हमारा है वो फ्रेम एस डैश में c माइनस a वेलोसिटी से मूव करता है। इट मीन्स फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में c माइनस b वेलोसिटी से मूव करता है एंड पार्टिकल जो फ्रेम एस डैश में है वो c माइनस a वेलोसिटी से उस फ्रेम में मूव करता है। मीन्स दोनों की स्पीड या दोनों की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है। सो u dash equal to c minus a and v equal to c minus b. Now from velocity addition rule or from relativistic law of addition of velocities, u equal to u dash plus v divided by 1 plus v by c square u dash। अब यहां पर आप u dash की जगह c minus a एंड v की जगह c minus b रख दो, तो u क्या हो जाएगा? So u equal to c minus a plus c minus b divided by 1 plus c minus b into c minus a upon c square। Now यहां पर हम c स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। सो जैसे आप c स्क्वायर एलसीएम लोगे ये क्या हो जाएगा? c स्क्वायर प्लस c माइनस बी इंटू सी माइनस ए अपॉन सी स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू सी माइनस बी को अगर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए बी एंड न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 2c माइनस ए प्लस बी। और यहां पर ये जो सी स्क्वायर है सो एक सी तो हम यहां पर रख लेते हैं और एक सी को हम न्यूमरेटर में लेकर चले जाते हैं। तो जैसे आप एक सी यहां पर छोड़ोगे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2c स्क्वायर अपॉन सी मीन्स 2c माइनस ए प्लस बी सी अपॉन सी मीन्स माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई सी तो प्लस ए बी बाई सी और एक सी हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यू हमारा ये हो जाएगा। अब यहां पर क्लियर है कि डिनोमिनेटर में 2c माइनस ए प्लस बी में a प्लस बी बाई सी एड हो रहा है। इट मीन्स 2c माइनस ए प्लस बी इज डेफिनेटली लेस देन द 2c माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई सी। सो इसकी वैल्यू से ज्यादा होगी, मीन्स डिनोमिनेटर में वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा है। तो u हमने ये निकाला था and AB by C is greater than 0. So 2C minus A plus B plus AB by C is definitely greater than 2C minus A plus B. तो ये वैल्यू हमारी कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। सो अगर वैल्यू डिनोमिनेटर में ज्यादा है सो एक्चुअल में वैल्यू हमारी कम होगी। सो U is less than C. सो पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम थी एंड दोनों फ्रेम के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी c से कम थी। सो फ्रेम s के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी अभी भी c से कम होगी। सो u इज लेस देन c। Thus the composition of two velocities which are separately less than c can never exceed c. सो दो वेलोसिटीज का कंपोजिशन जो दोनों ही c से कम है की वैल्यू कभी भी c से ज्यादा नहीं हो सकती है। नाउ सेकंड केस हम ले लेते हैं। इफ u डैश इक्वल टू v इक्वल टू c। अभी हमने u डैश की वैल्यू लेस देन c ली थी, v की वैल्यू भी लेस देन c ली थी। उस केस में हमने प्रूव किया था कि u इज लेस देन c
अब हम सेकंड केस लेते हैं, इफ u डैश इक्वल टू c एंड v इक्वल टू c। सो फ्रेम एच डैश के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है एंड दोनों फ्रेम की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी हमारे c के इक्वल है। सो u डैश इक्वल टू v इक्वल टू c। नाउ u इक्वल टू u डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर u डैश है। सो आप इसकी जगह c और इसकी जगह भी c रखो, तो ये भी c और ये भी c। सो u क्या हो जाएगा, u इक्वल टू c प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस c इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर और ये भी सी स्क्वायर, so c square upon c square is 1, so u equal to 2c upon 2, so u equal to 2c by 2, so u equal to c. Now in this case the velocity of particle in frame h dash is equal to the velocity of light and the relative velocity of two frames is also c. So पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेम एच डैश के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है एंड एच डैश हमारा एस के रेस्पेक्ट में सी वेलोसिटी से मूव करता है। इस केस में भी अगर हम देखें तो हमको पार्टिकल की फ्रेम एस के अंदर वेलोसिटी सी मिल रही है, तो इस केस में भी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं है। Thus, the velocity of light is the maximum range of velocity attainable in nature. So nature में जो maximum velocity की range हम achieve कर सकते हैं वो light की velocity के equal होगी। Now, here we end our session. In the current session, we have discussed about the relativity of velocity. So, goodbye.